Ji, Assalamu alaikum. Girls, this is our lecture number 2 of chapter number 4, Introduction to Geometry. Okay, we have discussed the 5 questions of 4.1 and I have discussed only the first part of the question number 4. Now, looking at the question part number 2 and 3 of question number 4, here he is asking that show that the points A, B, and C are the vertices of an isosceles triangle. Now, what is an isosceles triangle? A triangle, two of whose sides are equal and two of angles are equal is called as isosceles triangle. Okay, so when in this question you have to prove that these three vertices are the vertices of an isosceles triangle, what will you do? You will simply draw a triangle at first, okay, where the vertices are given. Roughly draw the triangle, then find the length of sides AB, BC, and CA. Okay, and how will you find the length of sides? By applying the distance formula. Okay. Now, if the length of any two sides are equal, then we will say that these three vertices are the vertices of an isosceles triangle. But if the two sides are not equal, any of the two sides, okay, and if any of two sides are not equal, then we will say that it is not an isosceles question. Okay, girls. But over here, the question is written show that. Okay, whenever the question starts with show that, it means that it is an isosceles triangle. You are required to prove it, you have to show it. Okay, so आपके आंसर क्या आना चाहिए कि जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, दे द लेंथ ऑफ these two sides should be same. Okay, now look at the third part. Here we are given the four vertices and they are the vertices of a parallelogram. Okay, he is asking that is this parallelogram a square. पहले तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं कि नहीं, अगर हमने फाइंड करना हो तो यहाँ पर तो ओके इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि शो करें पहली बात कि ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम हैं कि नहीं, और अगर पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो क्या ये स्क्वायर पैरेललोग्राम है या नहीं है। ठीक है जी, वो हम कैसे बताएंगे गर्ल्स। देखो, तो इनको आप रफली ड्रॉ करो, उसके बाद आप क्या करो, आप फाइंड करें ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ओके, लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स आप फाइंड कर लो। if any of two sides are parallel, means the length is equal. Okay, length of the any two sides is equal, it means that it is a parallelogram. But if all length of all the four sides are equal, then we will say that this parallelogram is a square parallelogram. Okay, girls. Okay, now come to the question number 6. Find H such that these points A, B, and C are the vertices of a right triangle with right angle at vertex A. ओके इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है जी एच की वैल्यू, जबकि हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि ए बी और सी जो हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ओके, अगेन आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में रफली स्केच करना है, फ्री हैंड स्केच करना है ए बी सी को। इसको आप स्केच नहीं कर पाओगे, सॉरी, क्योंकि एच की वैल्यू नहीं गिवन। अच्छा जी, इसीलिए इन्होंने गिवन हमें बताया है कि वर्टिस ए पे जो है वो राइट एंगल है। अब अगर हमारे पास वर्टेक्स ए पे राइट एंगल है, ठीक है, टेक दिस वर्टेक्स एज बी एज दिस वर्टेक्स एज सी। अब आप ये इस साइड की लेंथ स्मॉल सी हो जाएगी, इस साइड की लेंथ स्मॉल ए हो जाएगी, इस साइड की लेंथ हमारे पास स्मॉल बी हो जाएगी। नाउ ओवर एयर हाइपोटेन्यूज इज ए। सिंस आप लोग सोल्यूशन में क्या लिखोगे, सिंस इट इज गिवन दैट द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है जी, ये लाइन लिखने के बाद ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपने अब लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपके पास लेंथ हो गई जी बी सी का स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू BC square is equals to AB square plus
AC square अंडर द रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड करना है, BC की लेंथ फाइंड करनी है, AB की लेंथ फाइंड करनी है, AC की फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करके इसमें सारी वैल्यूज पुट करें। वैल्यू पुट करने से आप देखोगे ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। जब इक्वेशन बनेगी तो उस इक्वेशन में एक ही आपके पास अननोन है एंड दैट अननोन इज H। ओके, तो वो आपके पास इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ये सोल्यूशन एक दफा इसको देख लेते हैं हम जल्दी से यहाँ पे। Okay, this is the question. Question number 6. Okay, we since we know that this is right angle triangle, this is the reason we have applied Pythagoras theorem. इनकी वैल्यूज हमने पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये एक एच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वहां से हमने क्या किया जी, एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एच सच दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहले तो देखिए जी, कोलिनियर का मतलब क्या होता है। द वर्ड कोलिनियर मींस लीनियर वर्ड जब वो लाइन से आया है, सो इफ द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन वन सेम लाइन इट इज कॉल्ड एज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। व्हेनेवर 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है जी, अगर हमें पता है कि ये ए और बी 2 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो इसकी एक कंडीशन होती है, या 3 पॉइंट्स ले लो, x3 y3 1, this determinant is equals to 0, okay, where x1 y1 represents the coordinates of a, x2 y2 represent coordinates of b and x3 y3 represents coordinates of c। okay, whenever 3 points are collinear तो हम क्या करते हैं, determinant लेते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, वो determinant that should be equals to 0। ठीक है, this is the condition for 3 points to be collinear। okay, now, coming back to the solution of question number 7, find h such that the points are collinear. Now, over here, we are given that the points are collinear, so we know that if points are collinear, then this condition is satisfied. अब आपने simply क्या करना है, x1, x2, x3, y1, y2, y3 की values इसमें put कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद डिटर्मिनेंट ओपन करें। जब हमने डिटर्मिनेंट ओपन किया है जी, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल 3x3 का डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता है ना, आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट्स A and B are the end of a diameter of a circle, find the center and radius of circle। अब देखो बेटे, we are given the coordinates of point A and the coordinates of point B, okay, which are the end points of diameter। Firstly, we are required to find the center, since this center is also the midpoint of the line AB। okay, तो हम C के coordinates कैसे find करेंगे, by using the midpoint coordinate formula, which is x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। okay, तो वो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे आए हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने से। ठीक है, सेकेंडली हमने फाइंड करना है जी रेडियस। अब जबकि मेरे पास सी की भी कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, बी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो चाहे तो डिस्टेंस फाइंड कर लो बी सी, चाहे डिस्टेंस फाइंड कर लो ए सी, बोथ ऑफ द डिस्टेंस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक हो गया, यहाँ पर जब ये क्वेश्चन हुए हुए ना गर्ल्स, तो ये ए सी के बाद डायरेक्ट अंडर रूट में वैल्यू पुट कर दिया है। डू राइट फॉर्मूला आफ्टर राइटिंग दिस। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9, find h such that the points A, B, C are the vertices of a right triangle with right angle at vertex A। Again, इस तरह का क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, सो लुक एट दैट क्वेश्चन और इसको सॉल्व कीजिए, और इसके लिए आपको एक हिंट भी गिवन है कि आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी। Now coming to the question number 10, a quadrilateral has the points A, B, C and D as its vertices। quadrilateral girls कोई भी 4 sided figure होती है। ठीक है, हमें quadrilateral given है जिसके कि 4 vertices हमें given है, तो कह रहे हैं कि पहले आप फाइंड करें जी मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करें, फिर आप ये शो करिए कि जो फिगर बन रही है बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स consecutively is a parallelogram। ठीक है, फर्स्टली हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट्स फाइंड करना है। तो हमने क्या इधर देखा जी कि ये ए बी सी डी एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। लेट अस सपोज दैट H, E, F and G are the midpoints of the side AD, AB, BC and CD respectively। Okay, now since H is the midpoint of the side AD
and we are given the coordinates of point A and D as well. Okay, so we will simply apply the midpoint formula and we can calculate all the midpoints H, E, F and G. Okay, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला कौन सा लगाया है, x1 plus x2 divided by 2 plus comma y1 plus y2 divided by 2, which is the formula for calculating the midpoint of a straight line. Okay, तो मिड पॉइंट्स तो फाइंड हो गए एच, ई, एफ और जी. नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है कि ये आप प्रूफ करें कि जब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो इनको ये जो एच, ई, एफ और जी को ज्वाइन करने से जो फिगर बन रही है ये पैरेललोग्राम है. तो वो हमें कैसे पता चलेगा, ये सभी क्वेश्चन हमने पहले किया है गर्ल्स. आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एच, ई, एफ, जी एंड जी एच. If the length of the two opposite sides is equal, is same, then we will say that this figure is a parallelogram. Okay, देखो पहले हमने मिड पॉइंट्स फाइंड किए, उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके लेंथ ऑफ द साइड्स फाइंड की. While finding length of the sides, EF और GH की वैल्यू सेम आई है. ठीक है जी, देखें यहाँ पर EF एंड GH, और ये दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड्स है, इनकी लेंथ सेम आई, और HE और FG की लेंथ सेम आई. So if the length of the opposite sides are same, this recommends that the given figure formed by joining the midpoints is a parallelogram. Okay. Now come to question number 11. Find H such that the quadrilateral with vertices, this is a parallelogram, is it square? Same question girls हम लोगों ने पहले किया है. Do solve it by yourself. Coming to question number 12. If two vertices of an equilateral triangle are this and this, find the third vertex. How many of these triangles are possible? पहले तो हमें ट्राइंगल के दो वर्टिसेस गिवन है, हमने थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है. ठीक है जी, और ट्राइंगल हमें उन्होंने क्या कहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. Now, what is an equilateral triangle? A triangle in which all the three sides and all the three angles are equal is called as equilateral triangle. Thus, equilateral में देखो, the word equi means equal and lateral means sides. So a triangle with all the three sides as equal is called as equilateral triangle. Okay. So the first step is we have to find the third vertex. और उसके बाद पूछ रहा है कि जी how many of these triangles are possible. ठीक है, सबसे पहले जो चीज हमने फाइंड करनी होती है गर्ल्स वर्ड प्रॉब्लम्स में, we all most of the times we suppose that thing. Okay, so let CXY be the third vertex of an equilateral triangle. Now, since the given triangle is equilateral, so the length of all three sides will be equal. Length of AB, BC, CA हमारे पास क्या होगा, इक्वल आ जाएगा. हमने क्या किया, AB, BC, CA को डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हमने इनकी वैल्यूज फाइंड की. क्योंकि ये तीनों वैल्यूज इक्वल है ना आपस में, तो एक दफा 36 अंडर रूट को आप क्या करो, इस वाली सिर्फ सेकेंड वाली वैल्यू की इक्वल रखो, फिर 36 को इस वाली वैल्यू की इक्वल रखो. ठीक है, जब इन दोनों को बारी बारी इक्वल रखोगे तो आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी और अननोन आपके पास क्या है, दो ही हैं, एक्स एंड वाई. यहाँ से आपने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, और ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी यही एक्चुअली आपके पास क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट सी होगा. अब जो ये वैल्यूज प्लस माइनस में आ गई ना, जीरो का तो कोई साइन नहीं होता, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस माइनस साइन आया तो सी के दो कोऑर्डिनेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो जो ऊपर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना, इसी का दूसरा पार्ट कि हाउ मेनी ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, मतलब ए और बी तो यही वाले वर्टेक्स हैं, लेकिन सी जब आपने फाइंड किया तो उसके साथ बताइए कि कितनी ट्रायंगल्स पॉसिबल होंगी. तो सी में प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज क्योंकि बन गई, दिस इज द रीजन कि टू ट्रायंगल्स आर पॉसिबल. ओके, next question number 13. Find the points trisecting the join of A and B. Okay, अब देखो बेटे, trisecting का क्या मतलब है. क्वेश्चन है कि जी फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी. ए और बी एंड पॉइंट्स है किसी लाइन के, और वो पॉइंट्स फाइंड करें जो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं. तो लाइन को तीन हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, हमें दो पॉइंट्स चाहिए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट. इससे क्या हुआ कि लाइन जो है वो ट्राइसेक्ट हो गई, मतलब ट्राई मीन्स थ्री एंड सेक्ट मीन्स सेक्शंस, तो लाइन जो है हमारे पास थ्री सेक्शंस में डिवाइड हो गई. सो हमने करना क्या है कि फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं. पॉइंट्स फाइंड करने का मतलब है कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ओके,
अब देखिए ए और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने क्या ए और बी के कोऑर्डिनेट सॉरी गिवन है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी एंड डी. So we will suppose let C and D be the points which are trisecting the join of A and B. अब अगर ये इसको ट्राइसेक्ट करें तो देखो ये इसको क्या करेंगे, अगर हमें रेशो गिवन भी नहीं है इसका मतलब है कि ये इसको 1:1:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे. ठीक है, इसका मतलब है कि C पॉइंट इस पूरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है व्हाइल टॉकिंग अबाउट C ओनली. ओके, देखो लेट्स सी कि ये वाला पॉइंट C है और ये वाला पॉइंट हमारे पास D है. तो जो अगर मैं सिर्फ C की बात करती हूँ तो द पॉइंट C इज डिवाइडिंग द लाइन AB इन द रेशियो ऑफ 1:2. ओके, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द लाइन, व्हेन आई टॉक अबाउट द पॉइंट D ओनली, तो D इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, D डिवाइड कर रहा है 2:1 में. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें रेशियो गिवन हो और हमने फाइंड करना हो कि जी उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इस गिवन लाइन को फलां फलां रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, वो फॉर्मूला हम एक दफा दोबारा देखते हैं. ये जी फॉर्मूला. ठीक है, ये अच्छा, अब देखो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, x1 x2 y1 y2 ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, k1 k2 क्या लोगे, जब तो C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो हमने क्या कहा है कि C डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 1:2 में. तो फॉर C द वैल्यू ऑफ k1 इज 1, वैल्यू ऑफ k2 इज 2. ठीक हो गया. लेकिन जब आप D को फाइंड करोगे तो D को फाइंड करने के लिए k1 की वैल्यू 2 होगी, k2 की वैल्यू 1 होगी. ठीक है, x1 x2 y1 y2 तो सेम ही रहेंगे हमारे पास. अच्छा जी, तो देखिए हमने क्या किया, C के लिए ये वैल्यूज हमने पुट की. ठीक है, उस फॉर्मूले में डू राइट फॉर्मूला, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखें. ठीक है, उसके बाद ये वैल्यूज पुट करें. सिमिलरली अगर D को करना है तो D के लिए मैंने आपको रेशो एक्सप्लेन किया कि उसकी रेशो क्या होगी, 2:1 है. D के कोऑर्डिनेट के लिए k1 2 है और k2 1 है. ठीक है, तो आपको मेनली इसके लिए करना क्या है कि फॉर्मूला याद करना है आपने. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी. कि ए टू बी जो है वो 3/5 उसको कर रहा है. 3/5 का मतलब है कि टोटल तो उसको जो है ना 5 पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है. तो फर्स्ट 3/5 का मतलब है कि पहला पोर्शन 3 रेशो का है, सेकेंड 2 रेशो का है. k1 की वैल्यू 2 है, k2 की वैल्यू 2 है. ठीक है, x1 x2 ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं और इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है. सिंस इन द 13th क्वेश्चन एंड 14 बोथ द क्वेश्चंस द पॉइंट्स आर डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इंटरनली, इसलिए हमने प्लस वाला फॉर्मूला यूज किया. ठीक है, 15th क्वेश्चन में देखें, फाइंड द पॉइंट ऑन द जॉइंट ऑफ ए एंड बी दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज बी इज फ्रॉम ए. ओके, अच्छा मैं आपको ये फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है. ये लिखा हुआ है जी हमारे पास कि वो पॉइंट फाइंड करें लाइन ए बी पे जो ए से उतना दूर है, डबल दूर है जितना कि बी ए से दूर है. तो बी ए से जितना दूर है तो यानी कि जितना डिस्टेंस ए से बी का है उतना ही डिस्टेंस हमारे पास कितना है, बी से पी का है. ओके, तो क्या हो गया, ये ट्वाइस दूर हो गया ए से. अब आगे इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं जी कि व्हेन द पॉइंट पी इज लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ए एंड बी, और सेकंड है कि ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए एंड बी. तो फर्स्ट पॉइंट के लिए ये देखो फिगर बनी हुई है, ए और बी जिस डायरेक्शन में उसी साइड पे हमारे पास पी है और पी ए से डबल दूर है कितना, जितना कि बी ए से दूर है. ठीक है, k1 k2 दोनों की वैल्यूज 1 1 है. पॉइंट जो है आप एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं ए बी को, क्योंकि बाहर लाई कर रहे हैं ना ए बी से. तो अब आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो कि आपके पास माइनस वाला फॉर्मूला आएगा. ठीक है, और जिसका सेकेंड पार्ट है जिसमें के पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द ऑपोजिट साइड,
तो अब रेशो क्या हो गई, 2:1 की रेशो हो गई, क्योंकि ए से तो ट्वाइस ही दूर हो रहा है ना वो। तो अब 2:1 हो गई, और K1 K2 की वैल्यूज क्या है जी, K1 2 हो गया और K2 हमारे पास 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज पॉइंट्स, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ABC। हमने क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्विडिस्टेंट है इन तीनों वर्टिसेस से, ठीक है। सर्कम सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के ऊपर बनता है, और किस तरह वो ट्राइंगल के ऊपर बनता है कि दैट सर्कल शुड टच ऑल द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली, ठीक है। अच्छा, अब देखो A B और C के वर्टिसेस हमारे पास गिवन है। हम क्या कहते हैं, सपोज करते हैं कि डी पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ए से भी, बी से भी, सी से भी। अगर इन तीनों से वो इक्वी डिस्टेंट है, तो अगर मैं डी ए डी बी डी सी का डिस्टेंस लूंगी, दैट शुड बी इक्वल एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, और आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं डी के, वो हमने एक्स वाई ले लिए हैं, और ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, और आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी एक्स की आपके पास, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने हैं आपने। Next question है जी कि the points, these are the vertices of a triangle, find in center of the triangle. Now what is in center? A circle drawn inside the triangle such that it touches all the three sides of the triangle internally is called as in center. हमने क्या करना है, इन सेंटर फाइंड करना है ट्राइंगल का, ठीक है। ट्राइंगल का इन सेंटर फाइंड करने के लिए हमने उसका, ट्राइंगल के इन सेंटर का ये फॉर्मूला होता है गर्ल्स, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 से पहले लिखा है यहाँ पर। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, ओके। तो इस फॉर्मूले में देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3 आपके पास एक क्या चीजें हैं, ये जो तीन वर्टिसेस गिवन है ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके। अब आप क्या करो, सबसे पहले लेंथ ऑफ द साइड्स आपने फाइंड कर ली, ठीक। लेंथ ऑफ द साइड्स फाइंड करने के बाद यहाँ पर इसमें आपने सिंपल जो वैल्यूज आपके पास, लेंथ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, ए बी सी की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, ठीक है। विच आर द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वो वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करें। सो दिस इज द फॉर्मूला to calculate the in center of the triangle. Now come to the last question, question number 18 of the first exercise 4.1. Find the points that divide the line segment A and B into four equal parts. अच्छा जी, now इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अब 3 पॉइंट्स अगर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे, तो वो 3 लाइंस जो हैं गिवन लाइन ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना, ऐसा ही होगा ना। देखो अगर मेरे पास ये ए बी है और मुझे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो आई विल पुट 3 लाइंस, ठीक है। अब इस दिस क्वेश्चन इज बिट डिफरेंट, वाई, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन द ए एंड बी आर गिवन इन जनरल फॉर्म, ए और बी आपके पास x1 x2 y1 y2 की फॉर्म में गिवन है। Now, let's see D and E are the points dividing A, B into 4 equal parts. अगर equal parts में divide कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या होगा यहाँ पे, सबकी रेशो क्या होगी, 1:1:1:1, ठीक है। This is point C, this is point D, this is point E. So, the point C will divide the line segment AB in which ratio? In ratio 1:3, ठीक है। The point D will divide it in the ratio 2:2। इसका ये मतलब है ना कि डी तो इसका मिड पॉइंट हो गया, और जो ई है, ई पॉइंट वो किस रेशियो में डिवाइड करे जी, वो करे डिवाइड 3:1। तो सब डी तो बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने वो जो K1 रेशो वाला जो फॉर्मूला है ना, K1 K2 वाला, वो अप्लाई किया। सिंस द पॉइंट सी इज डिवाइडिंग इंटरनली, तो प्लस वाला फॉर्मूला इसमें लगा हुआ, ठीक है। बी के लिए हम मिड पॉइंट भी लगा सकते हैं, रेशो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो आप मर्जी लगाओ, ओके। अब जो सी डी और ई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना गर्ल्स, वो उसमें भी x1 x2 इन्वॉल्व हो रहे होंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में ही जो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है इन द फॉर्म ऑफ
in general form. Okay, x1, y1, x2, y2. Okay, girls, now this is the end of the lecture number 2, in which we have completed our exercise 4.1. Now we will do the next exercise 4.2 in our next lecture, inshallah.